हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू नवका डिजिटल इंस्टीट्यूट और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर धवल ठक्कर। देख रहे हैं हम यूनिट नंबर 10 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोजन फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक। अभी तक हमने जो एक्सरसाइज है उसके एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स वाले सेक्शंस देख लिए हैं। आज हम देखते हैं आगे solve the following section. Question number 63. If x varies inversely as y and x is equal to 20 and y is equal to 600, find y when x is equal to 400. So let's take x is equal to 20 as x1, y is equal to 600 as y1. Then we have to find y2 when x2 is equal to 400. Okay, so let's solve this. Sum number 63. X varies inversely y is given. X1 is equal to 20, y1 is equal to 600, x2 is equal to 400. Then find y2. So for inverse proportion, x1 y1 is equal to x2 y2. 20 multiply 600 is equal to 400 multiply y2. Therefore y2 is equal to 20 multiply 600 divided by 400. Okay, so let's simplify. 0 0 cancel, 0 0 cancel. 2 multiply 2 4 and 2 multiply 3 6. So answer is 30. Okay, so we get y2 is equal to 30. ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर। आगे देखते हैं 64 में क्या दिया है। यहाँ पे मैं दिया है वेरिएबल x वेरीज डायरेक्टली। पहले हमें इन्वर्सली दिया गया था, अब हमें दिया गया डायरेक्टली। ओके, यहाँ पे भी x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है। देन अगेन व्हाट इज y व्हेन x इज 64। ओके, पहले जो x है उसे हम बोलेंगे x1 y1. Find y2 when x2 is equal to 64. तो सॉल्व करते हैं सम नंबर 64। x varies directly to y as given. x1 80, y1 160. What is y when x2 is equal to 64? So x2 is equal to 64. y2 is question mark. Okay, so
for direct proportion x1 upon y1 is equal to x2 upon y2, (80 upon 160 is equal to 64 upon y2. So by simplifying this, 0 0 will be cancel out, 8 multiply 2 16. So in next step, after cross multiplication, okay, y2 is equal to 2 multiply 64 is equal to 128. Therefore y2 is equal to 128. ओके, तो ये हो गया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 64 का। आगे देखते हैं 65 में हमें क्या दिया है। L वेरीज डायरेक्टली एज M। अब यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर दिए गए तो उससे हमारे मेथड में कोई फ़र्क नहीं आने वाला। L वेरीज डायरेक्टली एज M, L इज इक्वल टू 5 व्हेन M इज इक्वल टू 2/3। फाइंड L व्हेन M इज इक्वल टू 16/3। ओके, तो ये जो L और M है उसके हिसाब से यहाँ पे अब हमें x1 x2 नहीं लेना है, अब हमें L1 L2 व M1 M2 लेना है। सो L1 इज इक्वल टू 5 व्हेन M1 इज इक्वल टू 2/3। सो फाइंड L व्हेन M इज इक्वल टू 16/3, यानी कि M2 हमें दिया है 16/3। वी हैव टू फाइंड L2। ओके, तो सम नंबर 65 में देखते हैं। L varies directly to M, L1 is 5 when M1 is 2/3। find L2 when M2 is equal to 16/3। So for direct proportion, L1 upon M1 is equal to L2 upon M2। so 5 divided by 2/3 is equal to L2 divided by 16/3। so by simplifying this we will have 5 multiply by 3/2 is equal to L2। क्योंकि हमने देखा था कि पहले कि जब भी डिनोमिनेटर के नीचे भी डिनोमिनेटर होता है तो वो जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में जाता है। या तो फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो डिवाइड है उसको हमने मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर दिया, तो जो डिवाइड में 2/3 है उसका हमने मल्टीप्लाई करके 3/2 कर दिया। ओके, सो L2 मल्टीप्लाई बाय 3/16। so to find L2,
we will send 3/16 to the opposite side from L2. So we will have 5 multiply 3/2 multiply by 16 divide by 3. 3 1s are 3, 2 8s are 16. So finally L2 is equal to 5 multiply 8, therefore L2 is equal to 40 आंसर। ओके, तो ये हो गया सम नंबर 65 का आंसर। अब देखते हैं इसी तरीके से और भी एक सम दिया है कि x वेरीज इनवर्सली एज y, ओके, एंड y1 is equal to 60 when x is equal to 1.5, it means x1 is equal to 1.5. then find x, it means find x2, okay, when y is equal to 4.5, it means y2 is given 4.5. so let's do this sum number 66. Given that x varies inversely, okay, now x1 is given 1.5 and y1 is given 60. so find x2 when y2 is equal to 4.5. so for inverse proportion x1 y1 is equal to x2 y2, 1.5 multiply 60 is equal to x2 multiply 4.5. okay, so to get x2, so x2 is equal to 1.5 multiply 60 divided by 4.5. okay, so 1.5 and 4.5 we will have 15 3s are 45 and decimal points having same digit after decimal point. so 60 divided by 3, then 3 2s are 6, answer is equal to 20. ओके, तो ये हो गया हमारा सम नंबर 66 का आंसर। 66 में हमें दिया था x वेरीज इनवर्सली, सो x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, जो वैल्यू दिए है वो सॉल्व करके आंसर मिला 20। 65 में x और y के बदले वेरिएबल चेंज किए थे l और m, और वो थे डायरेक्ट प्रोपोजन में। सो मेथड में कोई हमें यहाँ पे चेंज नहीं करना है। हाँ, यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो एक m1 और m2 है, उसकी वैल्यू हमें फ्रैक्शन में दी है, यहाँ पे हमें डेसिमल में दिया है, तो हमें सिर्फ हमारा कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान रख के करना पड़ेगा, बाकी जो मेथड है वो तो सेम ही रहने वाली है। ओके, आगे 64 में डायरेक्ट प्रपोजन में थे x एंड y, एंड 63 में इन्वर्स प्रपोजन में थे। तो ये हो गए हमारे कुछ सम जो एक ही
टाइप के सम्स थे जिसमें x और y के बीच में क्या रिलेशन है वो दिया था और x और y में हमें वैल्यूज़ दिए थे। आगे देखते हैं सम नंबर 67। तो देखते हैं सम नंबर 67। इन अ कैंप देयर इज इनफ फ्लोर फॉर 300 पर्सन फॉर 42 days। हाउ लॉन्ग विल द फ्लोर लास्ट इफ 20 मोर पर्सन ज्वाइन द कैंप। 300 लोग हैं तो जो फ्लोर है वो 42 डेज चलने वाला है, तो अभी 20 लोग ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो कितने दिन चलेगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ पर्सन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ डेज है वो कम होते जाएंगे। ओके, सो हियर फॉर सम नंबर 67, as number of persons increase, the number of days floor last decrease. Therefore इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, तो जो नंबर ऑफ पर्सन पहले है वो है 300, तो नंबर ऑफ डेज जो है वो है 42 और x2 जो है वो 300 प्लस 20 बढ़ गए तो हो गए 320, तो y2 हमें फाइंड करना है। ओके, सो इन इनवर्स प्रोपोर्शन x1 इंटू y1 is equal to x2 into y2. So x1 is 300, 300 multiply y1 is 42 is equal to x2 is 320, 320 multiply y2. So y2 is equal to 300 multiply 420 divided by 320. Okay, so let's simplify it. 0 0 cancel, 2 multiply 15, 2 multiply 16, 2 multiply 21 and 2 multiply 8. So we'll have 15 multiply 21 divided by 8. So 15 multiply 21 हमें आंसर मिलेगा 315 divided by 8. सो यहाँ पे हमें आंसर कुछ 39 पॉइंट अराउंड मिलेगा। 315 डिवाइड बाय 8, सो 8 3 ज़ा 24। ओके, यहाँ पे मिलेगा 11, यहाँ पे मिलेगा 2 7 5। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल रहा है 39 days and 3/8 parts। तो इसे आप डेसिमल पॉइंट में भी लिख सकते हैं और ऐसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, बट वी कैन कंक्लूड दैट कि
फाइनली जो फ्लोर है वो 39 डेज से ऊपर थोड़ा चलने वाला है, 40 दिन पूरा नहीं चलने वाला है। तो आंसर हम 39 राउंड ऑफ लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा सम नंबर 67 का आंसर आपके स्क्रीन के ऊपर। आगे देखते हैं सम नंबर 68 में हमें क्या दिया है। तो सम नंबर 68 में हमें दिया है कि कॉन्ट्रैक्टर undertook a contract to complete a part of a stadium in 9 months, so with a team of 560 person। अगर 560 person का एक टीम लेके स्टेडियम का एक पार्ट उसे कंप्लीट करना है तो 9 मंथ्स लग सकते हैं। लेटर ऑन इट वॉज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब इन 5 मंथ्स। 9 मंथ्स के बदले अभी 5 मंथ्स में ये जॉब कंप्लीट करना है। तो हाउ मैनी एक्स्ट्रा पर्सन शुड ही एम्प्लॉय टू कंप्लीट द वर्क। यही काम अगर उसको 9 महीने के बदले में 5 महीने में कंप्लीट करना है तो कितने एक्स्ट्रा लोग चाहिए। तो पहले तो कितने लोग चाहिए वो हमें फाइंड करना है कि 9 मंथ्स है तो 560 है, तो 5 मंथ्स है तो कितने लोग चाहिए। तो वो जो मिलेंगे उसके बाद 560 तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो और कितने ज़्यादा लोग हमें चाहिए, इस तरीके से हमें फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे भी ये वर्क और टाइम का जो रिलेशन है वो हम जानते हैं कि इन्वर्स प्रोपोर्शन में होता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ पर्सन बढ़ेंगे वैसे वैसे जो टाइम है वो कम लगने वाला है काम करने के लिए। ओके, सो देखते हैं सम नंबर 68। as number of person increase, number of days to finish work decrease, therefore it is also the sum of inverse proportion x1 9 मंथ्स में कंप्लीट करना है तो 560% चाहिए। x2 अगर 5 मंथ्स में कंप्लीट करना है तो पहले ये पता करो कि कितने पर्सन चाहिए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कितने एक्स्ट्रा पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी। इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। x1 into y1 it means 9 multiply 560 is equal to x2 means 5 multiply by y2, so y2 is equal to 9 multiply by 560 divide by 5। so यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 5 multiply 1 5 and 5 12 60, तो 112 मल्टीप्लाई बाय 9, तो उसका हमें आंसर मिलेगा 112 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 2 18 carry over 1, 9 9 plus 110, 9 9 plus 110, so 1008 हमें आंसर मिलेगा। तो अगर 5 महीने में ये काम कंप्लीट करना है तो हमें 1008% की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑलरेडी 560 तो काम कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा हमें कितने चाहिए।
1008 माइनस 550 हम करेंगे तो 8, 10, 9, तो हमें आंसर मिलेगा 448% हमें ज़्यादा चाहिए पहले के मुकाबले। अगर हमें यही काम 9 महीने के बदले 5 महीने में कंप्लीट करना है तो। ओके, ये हो गया हमारा सम नंबर 68। आगे देखते हैं 69 में हमें क्या दिया है। सोबी टाइप्स 1008 वर्ड्स इन 6 मिनट्स, हाउ मैनी वर्ड्स वुड शी टाइप इन हाफ एन आवर? हाफ एन आवर मीन्स 30 मिनट्स। तो टाइम ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ वर्ड्स भी ज़्यादा टाइप होने वाले हैं। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट प्रपोजन है 108 वर्ड्स इन 6 मिनट्स, सो इन 30 मिनट्स हाउ मैनी वर्ड्स। ओके, $69 as time increases number of words to be typed also increases, therefore they are in direct proportion। सो पहले हमें दिया है नंबर ऑफ वर्ड्स 108, उसके लिए टाइम लगता है 6 मिनट्स का ओनली। तो कितने वर्ड्स टाइप हो सकते हैं अगर टाइम लेते हैं हाफ एन आवर? इट मीन्स 30 मिनट्स का। ओके, सो डायरेक्ट प्रपोजन है तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। सो x1 अपॉन y1 मीन्स 108 अपॉन 6 इज इक्वल टू x2 अपॉन 30। therefore x2 is equal to 108 multiply by 30 divide by 6। so 6 multiply 5 30 and 108 multiply by 5, तो x2 का आंसर हमें मिलेगा 540। so answer is 540 words can Sobi types in half an hour। ओके, तो ये हो गया हमारा सम नंबर 69। यहाँ पे हमें पहले में आंसर मिला था कि कैंप में खाना कितने दिनों तक चलेगा, तो 39 days and 3/8। ओके, कॉन्ट्रैक्टर को कितने आदमी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो 448 आदमी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और जो सोबी वाला सम अभी हमने किया उसमें 108 वर्ड्स इन 6 मिनट्स, तो हाफ एन आवर में यानी कि 30 मिनट्स के अंदर 540 वर्ड्स सोबी टाइप कर सकती हैं। आगे देखते हैं 70 नंबर में हमें क्या दिया है। तो कार कवर अ डिस्टेंस इन 40 मिनट्स विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 km/h। व्हाट शुड बी द एवरेज स्पीड टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 25 मिनट। तो यहाँ पे जो स्पीड और टाइम है एक क्वांटिटी, तो स्पीड और टाइम जो है वो एक दूसरे के साथ इन्वर्स प्रोपोर्शन में ही होते हैं। अगर स्पीड बढ़ती है तो टाइम कम होता है,
ओके, तो यहाँ पे टाइम हमें कम करके दिया है, पहले 40 मिनट्स था, अभी 25 मिनट्स हो रहा है, तो स्पीड बढ़ेगी तभी तो इतना डिस्टेंस कम टाइम में कवर हो रहा है। तो देखते हैं स्पीड में क्या चेंज आता है। 70 नंबर, स्पीड एंड टाइम आर इन इनवर्स प्रपोर्शन तो जो पहले हमें दिया है टाइम x1 वो है 40 मिनट, y1 जो स्पीड दिया है पहले वो दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद हमें टाइम दिया है 25 मिनट्स में, अगर वही डिस्टेंस हमें कवर करना है तो x2 दिया है, तो y2 कितना होगा। तो इन्वर्स प्रपोर्शन है, तो इन्वर्स प्रपोर्शन में x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2, therefore 40 multiply 60 is equal to 25 multiply by y2। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो टाइम दिया है वो हमें मिनट में दिया है और जो स्पीड दिया है वो हमें किलोमीटर पर आवर में दिया है। तो जो स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में दिया है उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले मीटर पर मिनट में। तो 60 किलोमीटर का कर देते हैं 1000 में कन्वर्जन, यानी कि ये हो जाएगा मीटर एंड डिवाइड बाय हमें करना है मिनट्स, सो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए करेंगे डिवाइड बाय 60, तो ये हो जाएगा हमारा 1000 मीटर पर मिनट। तो यहाँ पे हमने जो 60 लिखा है उसके बदले हम लिख सकते हैं 40 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई y2। ओके, 1000 किस तरीके से आए वो मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि हमें जो टाइम यहाँ पे दिया है वो मिनट में दिया है, तो जो किलोमीटर पर आवर का यहाँ पे हमारा यूनिट है उसे हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर पर मिनट में। सो 1000 मीटर पर मिनट मिल रहा है हमें। y2 फाइंड करने के लिए 40 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय 25, तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 25 मल्टीप्लाई 400, तो पीछे एक ज़ीरो लगाएंगे तो 40, तो आंसर हमें मिल रहा है 1600 मीटर पर मिनट। ओके, अभी ये जो 1600 मीटर पर मिनट जो मिला है उसे वापस हमें अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 1600 डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो किलोमीटर का मीटर का हो जाएगा किलोमीटर, एंड जो मिनट है
उसे हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना है आवर में। ओके, सो यहाँ पे हमें जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे डिवाइड बाय 60 करेंगे तो डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो हमें आंसर मिलेगा मल्टीप्लाई में 60, तो वो हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। 0 0 0 कैंसल, सो फाइनल आंसर हमें मिलेगा y2 इज इक्वल टू 96 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये हो गया हमारा सम नंबर 70 का आंसर। जब स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर होती है तो डिस्टेंस 40 मिनट के अंदर कवर होगा, और जब स्पीड बढ़ा के 96 किलोमीटर पर आवर हम कर देंगे तब वही डिस्टेंस 25 मिनट में कवर कर सकते हैं। ओके, सो इन सम नंबर 70 आंसर इज आगे देखेंगे 71 नंबर में हमें दिया है इट गिव्स दैट L varies directly as M. Okay, so write an equation which relates L and M. Find the constant of proportion K when L is equal to 6 then M is equal to 18। पहले ये दो करते हैं, उसके बाद आगे के दो सम्स देखते हैं। तो L and M डायरेक्टली वेरी हो रहे हैं तो उनका रिलेशन लिखना है, और 6 L है और M जो है वो 18 है, तो K की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 71 नंबर L varies to M directly, therefore L upon M is equal to K कांस्टेंट। ये इक्वेशन होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। ओके, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर कि इक्वेशन क्या होगा। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इक्वेशन को, L1 अपॉन M1 इज इक्वल टू L2 अपॉन M2। ओके, सेकेंड नंबर L is equal to 6 and M is equal to 18, so L upon M is equal to K is equal to 1 upon 3 आंसर हमें मिलेगा। ओके, आगे देखते हैं थर्ड नंबर। तो उसमें हमें दिया है फाइंड L व्हेन M इज इक्वल टू 33। तो जो K की वैल्यू है वो हमारी फिक्स है 1/3, तो L हमें फाइंड करना है। M जब 33 होगा तो इज इक्वल टू हमें K जो है वो तो 1/3 ऑलरेडी मिल चुका है, तो L इज इक्वल टू 33 मल्टीप्लाई 1/3, तो L की वैल्यू हमें मिलेगी 11। ओके, ये हो गया थर्ड क्वेश्चन का आंसर। फोर्थ में हमें पूछा है फाइंड M व्हेन L इज इक्वल टू 8। तो वही जो इक्वेशन है L अपॉन M इज इक्वल टू K, तो L हमें दिया है 8, M हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 1/3,
तो m जो है वो क्रॉस में मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो m मल्टीप्लाई 1 1 मिलेगा, और जो 8 और 3 है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, तो m की वैल्यू हमें मिलेगी 24। ओके, तो ये हो गया हमारा 71 नंबर का आंसर, जिसमें हमें बोला है L वेर इज m डायरेक्टली। सो इक्वेशन क्या होगा, तो L अपॉन m इज इक्वल टू k मिलेगा। उसके बाद L की वैल्यू दी है, m फाइंड करना है, और लास्ट में m की वैल्यू दी है, L फाइंड करना है। ओके, L और m का रेशियो भी निकालना है, कांस्टेंट k क्या मिलता है। सो 70 हो गया, 71 हो गया। 72 में हम देखते हैं कि हमें क्या दिया है। If a deposits of 2000 earns interest of ₹500 in 3 years, how much interest would a deposit of ₹36,000 earn in a 3-year with the same rate of interest of simple interest? ओके, तो यहाँ पे अगर हमने 2000 रुपये डिपॉजिट किए हैं, तो जो इंटरेस्ट है वो मिल रहा है 500। तो अगर हम वहाँ पे जो डिपॉजिट अमाउंट है वो बढ़ा देंगे, टाइम भी सेम रख रहे हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम रख रहे हैं। ओके, तो टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होगा, तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रिंसिपल अमाउंट से, जो हमारा 2000 से बढ़कर 36,000 हो रहा है। ओके, तो देखते हैं किस तरीके से सॉल्यूशन मिलता है। 72 का क्या आंसर हमें मिलता है। Simple interest directly proportional to principal amount where time and rate of interest are constant. ओके, सो पहले हमें जो x1 यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है वो दिया गया है 2000, सॉरी x1 जो है वो है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, तो वो हमें दिया है 2000 रुपीज़। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट जो y1 है उस टाइम पे वो हमें दिया है 500 रुपीज़। अगर x2 हम बढ़ा के कर देते हैं 36,000, तो y2 हमारा क्या होगा। सो x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, देयरफॉर 2000 अपॉन 36,000 इज इक्वल टू 500 डिवाइड बाय y2. So here all the zeros are going to be cancelled out. 2 multiply 1836. To find y2 we do cross multiplication, so y2 is equal to 18 multiply 500, which is 9,000 rupees. ओके, तो जो प्रिंसिपल है वो अगर 2000 से बढ़ा के 36,000 कर देंगे, तो जो इंटरेस्ट हमें पहले मिल रहा था 500 रुपीज़, वो अब मिलेगा 9,000 रुपीज़। Okay, next, the mass of an aluminum rod varies directly with its length.
जितना लंबा होगा उसका मास उतना ज़्यादा होगा। इफ़ 16 सेंटीमीटर लॉन्ग रोड हैज़ मास 192 ग्राम, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोड whose मास इज़ 105। तो यहाँ पे दोनों का रिलेशन तो हमें दे ही दिया है डायरेक्टली। ओके, तो x1 जो है, x जो है वो मास हो जाएगा एंड y जो है वो लेंथ हो जाएगा। ओके, तो 73 नंबर x जो है वो मास, y जो है वो लेंथ, both are in direct proportion already given। x1 दिया है 192 and 16 and 105 question mark। 192 when length is equal to 16 सेंटीमीटर। ओके, तो अगर मास हमें चाहिए 105 ग्राम, तो लेंथ क्या होगा? ओके, सो डायरेक्ट प्रपोजन में x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 हमें मिलेगा। वन 192 अपॉन 105 इज इक्वल, सॉरी 192 अपॉन 16 इज इक्वल टू 105 अपॉन y2। ओके, सो 16 multiplied 12, 16 times 160 and 16 to the 32, so 160 plus 32 192, so 16 multiplied 12 हमें आंसर 192 मिलेगा। और y2 फाइंड करने के लिए 105 डिवाइड बाय 12, तो 105 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे डेसिमल पॉइंट में आंसर आएगा 12 मल्टीप्लाइड 96, यहाँ पे बचेगा 9। अगर हम 0 लेके और एक डेसिमल पॉइंट रखेंगे तो 12 7 ज़ा 84 एंड 6 0, 12 5 ज़ा 60, तो आंसर हमें मिलेगा 8.75 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस का आंसर है, तो वो डेसिमल पॉइंट पे हम रख सकते हो। वो नंबर ऑफ डेज होता था तो उसे हमने डेसिमल में नहीं रखा था, फ्रैक्शन में रखा था, क्योंकि नंबर ऑफ डेज फ्रैक्शन में नहीं लिखते हम जनरली। तो y2 जो है वो 8.75 आंसर मिल रहा है, यानी कि जो एल्यूमिनियम रोड है उसकी लेंथ अगर 8.75 सेंटीमीटर रखेंगे तो उसका जो मास है वो मिलेगा 105 ग्राम। ओके, .75 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये हो गया हमारा सम नंबर 73 का आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ a एंड b आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। a और b के लिए अलग अलग वैल्यूज दिए गए हैं हमें, थोड़े टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं।
these are the different values of A, and these are the different value of B. Okay, 12, 30, x, 5, 8, y. So for inverse proposition, we know that the relation between them will be a1 a2 is equal to a1 multiply b1 is equal to a2 multiply b2. So a1 b1 means 12 and 3. a2 b2 is x multiplied by 5. Therefore x is equal to 12 multiply 30 divided by 5. So 5 multiply 6 30. So the value of x is equal to 72. Now again to find the y, a1 b1 is equal to a2 b2 as they are in inverse proposition. So again 12 multiply 30. You can also take here a1 b1 as the value we have found 72 and 5. Okay, 12 multiply 30 is equal to 8 multiply y, or 72 multiply 5 is equal to 8 multiply y. दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो. Therefore y is equal to 12 multiply 30 divided by 8, 4 multiply 3, 4 multiply 2 and 2 multiply 15. Therefore y is equal to 15 multiply 3, 45. ओके, ये हो जाएगा सम नंबर 74 का आंसर. आगे देखेंगे सम नंबर 75 में हमें क्या दिया है. नरेश वॉक्स 250 स्टेप्स टू कवर अ डिस्टेंस 200 मीटर. फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 350 स्टेप्स. अगर स्टेप्स बढ़ेंगे तो डिस्टेंस जो है वो भी बढ़ने वाला है ऑब्वियसली, तो ये डायरेक्ट प्रोपोजन हो जाएगा. ओके, फॉर 75. Number of steps and distance covered are in direct proportion. Okay, so नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो x ले लेते हैं, तो x1 हमें दिए है 250 स्टेप्स. तो जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो हुआ है 250 में 200, तो 350 में 200 मीटर्स. सो x2 जो है वो अगर हम करेंगे 350 स्टेप्स, तो y2 कितना मिलेगा. ओके, सो
डायरेक्ट प्रपोजन है इसलिए x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। सो x1 अपॉन y1 में हमें दिया है 250 अपॉन 200 इज इक्वल टू 350 अपॉन y2। ओके, 0 0 यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे। उसके बाद हमें मिलेगा 5 मल्टीप्लाई 5 एंड 5 मल्टीप्लाई 4। To find y2 after cross multiplying, we will have y2 is equal to 350 multiply 4 divided by 5. So 5 multiply 7, 35, so 70. So the value of y2 is equal to 70 multiply 4, 280 meters. ओके, तो नरेश अगर 350 स्टेप्स वॉक करता है तो वो डिस्टेंस कवर करेगा 280 मीटर्स। यहाँ पे हम लिख सकते हैं आंसर में नरेश, if Naresh walks 350 steps, then distance traveled is 280 मीटर। तो ये हो गया हमारा सम नंबर 75। नेक्स्ट 76 में हमें क्या दिया है, तो अ कार ट्रैवल डिस्टेंस 225 किलोमीटर इन 25 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मैनी लीटर ऑफ पेट्रोल बी रिक्वायर्ड टू कवर डिस्टेंस 540। तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना है तो पेट्रोल भी ज़्यादा चाहिए। ओके, तो ये भी एक डायरेक्ट प्रपोजन ही होगा। डिस्टेंस ट्रैवल्ड and required petrol जो रिलेशन है वो हो जाएगा डायरेक्ट प्रपोजन के लिए। ओके, सो जो डिस्टेंस ट्रैवल है x1 वो हमें दिया है 225, 250 एंड 540। देन हाउ मच, 225 किलोमीटर अगर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो पेट्रोल चाहिए 25 लीटर, और अगर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं 540 किलोमीटर तो पेट्रोल कितना चाहिए। ओके, तो सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग डायरेक्ट प्रपोजन, बिकॉज डिस्टेंस ट्रैवल एंड पेट्रोल रिक्वायर्ड आर इन डायरेक्ट प्रपोजन ऑलवेज। जितना ज़्यादा डिस्टेंस चाहिए कवर करना है उतना ज़्यादा पेट्रोल चाहिए, अगर कम डिस्टेंस कवर करना है तो कम पेट्रोल चाहिए। ओके, सो x1 अपॉन y1 is equal to x2 upon y2, 225 divided by 25 is equal to 540 divided by y2. So 25 9s are 225. So आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग y2 हमें मिलेगा 540
divide by 9, 9 6 are 54, so y2 is equal to 60 liters. So if we want to travel distance 540 kilometer, then petrol we required is 60 liter petrol will be required to cover distance 540 किलोमीटर. ओके, तो इस तरीके से हमें आंसर मिल जाएगा हमारे सम नंबर 76 का. अब 77 में हमें पूछा है फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल डिटरमाइन इफ x एंड y इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन और नॉट. तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि नहीं वो चेक करने के लिए टू चेक x and y are in direct proportion or not, check x upon y is equal to k, where k is constant. ओके, तो x अपन y चेक करते हैं 3/4 के लिए. तो 3 4 ज़ा 12, सो यहाँ पे मिलेगा 1/4. देन 6 4 ज़ा 12, यहाँ पे मिलेगा 1/4. देन 15 3 ज़ा 45, तो यहाँ पे 1/3 मिल रहा है. 23 ज़ा 60, तो यहाँ पे भी 1/3 मिल रहा है. 34 ज़ा 120. तो यहाँ पे हमें जो रिड्यूस फॉर्म मिल रहे हैं वो है 1/4, 1/4, 1/3, 1/3 एंड 1/4. तो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे x एंड y का जो रेशियो है वो कांस्टेंट नहीं है. तो जो पहला टेबल है उसमें x एंड y डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है. ओके, दूसरे टेबल के लिए देखते हैं 4 and 24. सो 4 6 ज़ा 24, 1/6. 7 6 ज़ा 42, 1/6. 10 6 ज़ा 60, 1/6. 16 6 ज़ा 96, 1/6. So reduced form or the ratio is constant 1/6. तो जो दूसरा टेबल है वो शो कर रहा है कि x एंड y डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है. ओके, एंड द लास्ट वन इज 1 and 1.5. तो ये तो हो जाएगा 1/1.5. देन 4 and 6. तो 4 and 6 के लिए भी हमें पता है 15 4 ज़ा 60 होता है, तो 6 है तो 1.5 मिलेगा. देन 15 9 ज़ा 135, तो 1.5 मिलेगा, तो 13.5. एंड 0 0 कैंसिल आउट. 2 and 3 को डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 1.5. तो हियर ऑल्सो ऑल the ratio of x and y giving a constant value which is 1.5. So for table number 2 and 3, x and y are in direct proportion. Okay, for 2 and 3 having x and y in direct proportion. ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर. आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78 में हमें क्या दिया है. क्वेश्चन नंबर 78 में हमें दिया है कि इफ़ a and b vary inversely to each other then find the value of p q r
एक्स वाई जेड एंड एल एम एन। ओके, तो इन्वर्सली प्रपोजन में जब भी होता है तब स्टैंडर्ड इक्वेशन हमें पता है x1 वन इंटू वाई वन इज इक्वल टू x2 इंटू वाई टू। ओके, सो फाइंड करते हैं पहले टेबल में p q एंड r का वैल्यू। तो सिक्स फॉर इन्वर्स proportion 6 multiply 18 is equal to 8 multiply p, therefore p is equal to 6 multiply 18 upon 8. Okay, so 2 multiply 3 and 2 multiply 4, 2 multiply 9 and 2 multiply 2. So value of p is equal to 9 multiply 327 upon 2. ये हमें वैल्यू मिलेगा p के लिए। ओके, now for q you can take 8 and 27 upon 2 as x1 y1 and x2 y2 is q and 39, या तो फिर आप जो पहला 6 अपॉन 18 है उसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं। तो 27 अपॉन 2 जो फ्रैक्शन है उसे शायद हमारे कैलकुलेशन में हमें प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम 6 एंड 18 जो है उसे ही x1 y1 के लिए कंटिन्यू रखेंगे। सिक्स मल्टीप्लाई 18 is equal to q multiply 39. Therefore 6 multiply 18 upon 39 is equal to q. तो यहाँ पे हमें 3 कॉमन मिलेगा, 3 multiply 13 and 3 multiply 2. So the value of q is 18 2 जा, सॉरी यहाँ पे 13 आएगा, 3 multiply 13, सो यहाँ पे हमें मिलेगा 36 upon 13 for the value of q to be in inverse proportion. ओके, तो q मिल गया। and now 6 18 and 25 and r. okay, six multiply 18 is equal to 25 multiplied by r. So 6 multiplied by 18 upon 25 is equal to r. यहाँ पे कुछ भी रिड्यूस नहीं हो सकता, so multiply 6 with 18 we will have 108 upon 25. ओके, तो ये हो जाएगा हमारा सम नंबर 78 फॉर इनवर्स प्रोपोजन
पी क्यू एन आर के वैल्यूज़ हमें मिल गए यहाँ पे। जो दूसरा टेबल है उसमें हमें वैल्यू निकालना है एक्स वाई एंड जेड के लिए, और वो भी इन्वर्स प्रोपोर्शन में ही है। तो यहाँ पे हम अगर पहले दो कॉलम को ध्यान में रखेंगे तो यहाँ हमारे पास दो वेरिएबल होंगे एक्स एंड वाई दोनों, तो दोनों की वैल्यू हम एक साथ नहीं निकाल सकते। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें सीक्वेंस में ही लेना है। 2 and x as a x1 y1 and we can take x2 y2 6 and 15. Okay, so ये टेबल नंबर 1 के ही 3 पार्ट है। आगे देखते हैं 78 का सेकंड टेबल। टू एक्स y and 12.5 6 15 10z okay. So for inverse proportion again x1 y1 is equal to x2 y2, but as I told you कि यहाँ पे पहले दो कॉलम है उसमें हमारे पास दो वेरिएबल है x एंड y। तो अगर वहाँ पे हम x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 के लिए पहले ही दो कॉलम सिलेक्ट करेंगे तो दो अननोन टर्म्स हो जाएंगे, तो वैल्यू हमें एक का भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम लेंगे फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम। सो 2 multiply x is equal to 15 multiply 6. Okay, so to get x is equal to 15 6 90 divided by 2, या तो फिर 15 multiply 6 divided by 2, 2 multiply 3 6, 15 3 45। तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 45। नेक्स्ट टू फाइंड y, y multiply 12.5 is equal to 6 multiply 15. Okay, so y is equal to 6 multiply 15 divided by 12.5. Okay, so simplifying 6 multiply 15 divided by 12.5 is 125 upon 10. so डिवाइड में जो 10 है वो न्यूमरेटर में जाएगा। आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 5 से अगर हम रिड्यूस करेंगे तो 5 3 एंड 25, 5 अगेन 5 2 एंड 5 5। तो यहाँ पे हमें आंसर कुछ इस तरीके से मिलेगा कि 6 multiply 6 36 upon 5। सो y का वैल्यू हमें 36 upon 5 तो डेसिमल में मिलेगा 7.2। मल्टीप्लाई टू कर देंगे तो 72 upon 10, सो 7.2 हमें मिलेगा वैल्यू ऑफ y। ओके, और
लास्ट में हमें दिया है 16 6 15 10 z, तो 6 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई z, तो 6 मल्टीप्लाई 15 जो है वो मिलेगा 90 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई z, तो z इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 10, तो z इज इक्वल टू हमें वैल्यू मिलेगा 9। तो x y z हमें इस तरीके से 45, 72 एंड 9 मिल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट L5 9M 72 जो 78 नंबर का जो सम है उसका लास्ट टेबल, L5 9M N25 610 N25 610. Okay, so here also by applying inverse proportion, तो यहाँ पे भी पहले जो दो कॉलम है उसमें L और M दोनों यहाँ पे वेरिएबल अननोन टर्म है, तीसरा कॉलम N है वहाँ पे भी अननोन टर्म है एक, तो पहले दो कॉलम या पहला और तीसरा कॉलम उसका हम पेयर नहीं कर सकते, हम जो भी पेयर करते हैं उसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए तब भी हमें उसका वैल्यू मिलेगा। तो फर्स्ट एंड लास्ट को कंसीडर करते हुए L मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 10, therefore L is equal to 6 multiply 10 divided by 5, 5 2s are 10, so L की वैल्यू हमें मिलेगी 6 multiply to 12. Next N multiply M is equal to 6 multiply 10. ओके, तो m की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो m इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 9, 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, तो m की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी 20/3। और लास्ट में हमें चाहिए n की वैल्यू, सो n/25, सॉरी n मल्टीप्लाई 25 डायरेक्ट प्रपोजन है, इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 10, तो n हमें मिलेगा 6 मल्टीप्लाई बाय 10/25, तो हमें मिलेगा 5 से अगर हम यहाँ पे रिड्यूस करेंगे तो 5 5 एंड 5 2, सो वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 6 2 12/5। ओके, तो इस तरीके से हमें सम नंबर 78 के जो तीनों टेबल दिए हैं उसमें हमें जो वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला था x y z p q r l m n, वो सारे हमने फाइंड कर लिए हैं बाय a and b वेरी इन्वर्सली। सो जो
इन्वर्स प्रोपोजन का इक्वेशन था x1 वन इंटू वाई वन इज इक्वल टू x2 इंटू वाई टू, वही यूज़ करके हमने सारे आंसर्स यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं। ओके, आगे हम देखेंगे सम नंबर 79। इफ़ 25 मीटर ऑफ क्लोथ्स कॉस्ट 337.50 then what will be the cost of 40 meter of the same type of clothes। ओके, तो अगर यहाँ पे जो मीटर्स है वो बढ़ेंगे तो उसका कॉस्ट भी बढ़ेगा, जितना ज़्यादा क्लॉथ लेंगे उतना ही वहाँ पे दाम ज़्यादा देना पड़ेगा। तो सम नंबर 79 देखते हैं, जो कि क्लोथ एंड कॉस्ट एक्स एंड वाई, तो डायरेक्ट प्रपोजन ही होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा क्लोथ लेंगे उतना कॉस्ट बढ़ने वाला है। x1 y1 पहले केस के लिए, x2 y2, तो x1 यानी कि जो क्लोथ है वो लिया है 25 मीटर। ओके, तो हमें कॉस्ट देना पड़ा है 337.5 rupees। Then if the cloth is 40 meter, find cost। So by applying equation of direct proportion x1 upon y1 is equal to x2 by y2, (25) डिवाइड बाय 337.50, या तो सिर्फ 337.5 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाय y2। सो y2 इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 337.5 डिवाइड बाय 25 is equal to 40 multiply 3375 upon 25 multiply by 10, बिकॉज यहाँ पे जो 337.5 था वहाँ से हमने डेसिमल पॉइंट रिमूव कर दिया, तो एक एक ज़ीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब 5 से यहाँ पे अगर हम रिड्यूस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 25 में 5 5 मिलेगा, और 3375 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे 5 6 5 7 35 and 5 5 25, सो हमें आंसर मिलेगा 675। एंड इफ वी डिवाइड 675 अगेन विथ 5, सो 5 1 5 1 7 5 3 15, सो 135। ओके, तो आगे हमें मिलेगा 135 मल्टीप्लाई बाय 4, इतना कॉस्ट हमारा होगा फाइनल आफ्टर रिड्यूसिंग। सो 135 मल्टीप्लाई बाय 4 अगर हम करेंगे तो 5 4 20 करिए 2 4 3 12 प्लस 2 40 4, ओके, एंड 4 1 4 प्लस 1 5, सो y2 is equal to 540 rupees।
क्लियर? ये हो गया पहला पार्ट हमारे सम का। और नेक्स्ट में हमें अमाउंट दिया गया है कुछ कि अगर 810 रुपीज़ है हमारे पास तो हम कितना मीटर क्लॉथ परचेस कर सकते हैं। एक्स वाई क्लॉथ कॉस्ट पहले दिया है 25 मीटर, x1 तो y1 हमें दिया है 337.50। x2 इस बार फाइंड करना है, यानी कि कितना मीटर क्लॉथ हम परचेस कर सकते हैं जब हमारे पास रुपीज़ हो 810। ओके, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ही है यहाँ पे भी। Therefore x1 upon y1 is equal to x2 by y2। x1 जो है वो है 25 एंड y1 जो है 337.50 इज इक्वल टू x2 हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमें मिलना चाहिए 810। ओके, सो x2 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 810 जो है वो 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड डिवाइड में 337.50 है वो 50 और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर में, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक एक ज़ीरो यहाँ पे हम कैंसिल कर सकते हैं। ओके, अभी हम रिड्यूस करेंगे 3375 को 5 से, तो हमें मिला था आंसर, हमें पता है आगे ही हमने किया। यहाँ पे हमें आंसर मिला है 135 आई गेस। यस, 25 को 3375 से हमने रिड्यूस किया था तो हमें आंसर मिला था 135। अभी आगे रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 8100 एंड 135। तो 9 से यहाँ पे अगर हम रिड्यूस करेंगे तो हमें मिलेगा 9 मल्टीप्लाई 9 एंड 00, और यहाँ पे हमें मिलेगा 9 मल्टीप्लाई बाई 15, तो हमें मिलेगा 135। देन 15 मल्टीप्लाई 6 90 होता है, तो हमें आंसर फाइनली मिलेगा 15 6 90 और एक 0। इट मीन्स वी कैन परचेज 60 मीटर क्लॉथ इन 810 रुपीज़। ओके, तो ये हो गया हमारा सम नंबर 79 का आंसर कि 40 मीटर क्लॉथ लेना है तो हमें चाहिए 540 रुपीज़, और अगर हमारे पास 810 रुपीज़ है तो हमें कितना क्लॉथ मिलेगा, हमें मिलेगा 60 मीटर। ओके, तो ये हो गया हमारा सम नंबर 78 एंड 79 का सॉल्यूशन।